Thank you very much. Today I am going to discuss in my sixth lecture addition of the large numbers. And the title of my lecture is addition up to 5-6 digits number. That is very important. This is page 1. So first I will discuss about the property of the addition, or you can say warm up, because should be known to the students at this level. First property is if 0 is added to any number, the number does not changes. Here I have given example 1,55,545. If you add 0, the number remains the same. मैंने 0 को ऐड करिए, लेफ्ट राइट रिजल्ट सेम रहेगा जो है. The second property that is 1 is added to any number gives the successor of a number. कहने का मतलब 999 ये आपका नंबर है, and if you add 1 it becomes 1000, which is the successor of 999. देखिए स्पेलिंग में कहीं इधर उधर थोड़ा, उससे डोंट माइंड इट. अब देखिए another important thing, the order of the addend cannot affect the sum. Suppose add 1, add 2, add 3 है, 3 को ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, कोई रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा जो है. The second important thing is that if you want to add the 2 single digit number, ध्यान रखिएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी जो है 18 हो सकता है जो है. Hence carry over is always 1 from O to T, T to H, H to TH, etc. Second, the add will represent the addend. I am not going to write always addend. I will write add 1, add 2, add 3, add 4 like this for convenience of the students. So because of that, I mentioned that this ADD means add. So add 1, add 2, add 3. Now the next. Here I have given the example, and you have to be very carefully understood how the addition is done. First, there are 2 numbers, which we have to add it. So how you should proceed it? First, solution I am just giving you. Step 1, write both addend in column with place. Place means position. ये ध्यान रखिएगा. Place means position. Position and place is same. For example, this is the first digit, second, third, fourth, fifth. Understood? I have already given. So this is known as the position. Then you write both addend. Addend 1, addend 2. 14,572 and 77,583. That's important. Now how to proceed it? Step 2. Add digit at O. These are the single digit. So we have added at O. 2 plus 3 is equal to 5. Very clear. Write 5 at O of sum. ध्यान रखिएगा, ये O of sum है, T of the sum है, H of the sum है, TH of the sum है, TTH of the sum है. क्योंकि sum का जो है प्लेस अलग है और addend 1, addend 2 का प्लेस अलग है. स्टेप 3, यहां ध्यान रखिएगा, यू हैव टू एड 7 plus 8. तो 70, 80. T लिखना बहुत जरूरी है. That is very important because we are adding at T is equal to 15. This 15 becomes 10 plus 5 or 10 T is equal to 1H. 1H is equal to 10 T. On plus 5t. अब यहाँ क्या करना है कि 5t के नीचे, t के नीचे 5 लिखिए and 1h को कैरी ओवर करिए. Write 5 at t of the sum and carry over 1 above the h of the addend 1. Addend 1 को ओवर कैरी कर दिया. Next, step 4. Now add the digits at h. क्या है? 1 plus 5 plus 5. क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा. 10 plus 1 हो गया और 10 is equal to 1 TH and 1H. Write 1 at H of the sum and carry over 1 TH over the TH of the addend.
कैरी ओवर का मतलब टी एच है तो टी एच के ऊपर कैरी ओवर होगा, एच है तो एच के ऊपर कैरी होगा, लाइक दिस. नाउ स्टेप 5, हियर यू हैव टू ऐड 1 + 4 + 7. बहुत सिंपल है, एडिशन है इसमें. अप टू क्लास 4 द स्टूडेंट शुड नो हाउ टू यूज इट बाय फॉरवर्ड काउंटिंग, बाय स्क्वायर मेथड और बाय बार मेथड. अब देखिए ये आपका 12 हो गया, 10 + 2 ये 1 TH हो गया और ये 2 TH हो गया, TTH. तो इसके नीचे आपका जो है 2 लिख दीजिए और 1 को कैरी ओवर कर दीजिए. फिर इस पर ऐड कर दीजिए 1 + 1 + 7 9. राइट 9 एट द सम ऑफ दिस. अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये चीज मैं लिखा हूं. आई हैव एक्सप्लेन द रीग्रुपिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीग्रुपिंग? अब देखिए यहां पर एडिशन ऑफ H डिपेंडिंग ऑन T or addition of T depends on H, addition of H depends on TH, addition of TH depends upon TTH. That is called the regrouping. तो यहां पर हमने लिखा है कि since addition of each numbers at O, T, H, TH, TTH are depending on each other, hence such sum is known as regrouping sum. तो ये जो है regrouping sum इसको बोला जाता है. And if they are not depending on each other, digit at every place is independent of others, then it is called without regrouping. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसको आपको बच्चों को समझना चाहिए. ये क्वेश्चन बहुत आता रहता है जो है, और बहुत ये कंफ्यूजिंग टाइप के. हम लोग कंफ्यूज है तो बच्चे तो कंफ्यूज है, बस टीचर को बहुत क्लियरली बताना चाहिए. हाउ? यहाँ find the missing digit at O, T, H, TH, TTH. अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ सम दिया हुआ है. मिसिंग एट O ये है, T पर ये है, H पर ये है और TH पर ये है और TTH पर ये है. तो हमने फॉर सेफ साइड आई हैव रिटन 8 1, 8 2, 8 3, 8 4 एंड सम. आई हैव रिटन. रिमेंबर, if you add all the addend is equal to sum. ये फार्मूला है, आप इसको याद करिए कि सभी एडेंड को ऐड करेंगे तो सम के बराबर होगा. अब हमने स्टेप बाय स्टेप लिया है. एट O, ज्यादा ध्यान से देखिएगा. एट O अगर आप ऐड करेंगे 6 + मिसिंग टर्म + 7 + 3 इज इक्वल टू 7. अब आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 6 + 7, 7 + 3 10, 16. मिसिंग टर्म एंड 7. अब यहां पर हमने क्या किया कि 16 को लेफ्ट से राइट में ले गया है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग एनी डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइन इज चेंज. तो अब यहां पर क्या हो गया है? ये हो गया है 7 - 16, क्योंकि 16 प्लस है तो इधर जाकर क्या हो गया? माइनस हो गया. अब देखिए अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 7 इज मिनिमम और ये सब्सटेंड है. बच्चों को बताया गया है कि यू कैन सब्सट्रैक्ट लोअर वैल्यू फ्रॉम द हायर वैल्यू. अभी यही बताया गया है. तो अब इसको हायर कैसे बनाएंगे? 7 को यहां पर लिखा गया है मिनिमम इज लेस देन सब्सटेंड. अब क्या है? बारो 1T फ्रॉम टेंस ऑफ द एडेंट. अब इस टेंस के एडेंट से बारो करिए आप. तो बारो करने क्या हो जाएगा? तो 1T 7 है और 16 हो जाएगा. तो 1T = 10 O होता है तो ये मिलकर 7 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा. और ये रीजन में दे दिया कि क्यों ऐसे होता है. इसका मतलब कि 1 यहां पर लिखा जाएगा. अब क्रॉस चेक कर लीजिए. क्रॉस चेक क्या करेंगे? 6 + 7, 7 + 7 14, 3 17 और 1 यहां पर आ गया. सिंपल चीज. अब देखिए फिर इसको एडेंड करिए और फाइनली द मिसिंग डिजिट एट बिकम्स 1. और चेकिंग का पॉइंट मैं यहां पर दे दिया हूं इसको. अब इसमें थोड़ा लंबा है. एट T पर जाइए.
ये पेज 2 है, अभी 80 ये है। अब 80 पर ऑल एडेंड को ऐड करिए जिसमें मिसिंग टर्म भी है इक्वल टू 5। सिंपली इसको ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा और ये प्लस मिसिंग टर्म, और इस 21 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये मिनुएंट है और ये सब्सटेंड है, और यहां पर भी मिनुएंट इज लेस देन सब्सटेंड। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां 1h से काम नहीं चलेगा, यहां पर जो है 2h को काम ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमने लिखा है मिनुएंट इज लेस देन borrow 2h from h as a minuend and add to the 5t which becomes 25h ht। अब इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, अब यहां पर 2 के जगह जो है 2h के जगह 5h हो जाएगा, और 2h और 5h 25h हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1h इज इक्वल टू 10t। तो क्या हो गया, और 2h इज इक्वल टू 10 प्लस 5 25, तो 2h कितना हो जाएगा इक्वल टू 20t। ये देखिएगा, तो अब यह हो गया 20 प्लस 5 25 माइनस 21 इक्वल टू 4। तो अब क्या है, हेंस रिप्लेस द मिसिंग डिजिट एट t एज एडेंट एज ए 4। अब देखिए यहां पर भी चेक कर लीजिए, 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 25, और इसमें कैरी ओवर 2 करना होगा जो मैं यहां पर बता देता हूं। और सॉरी, अब देखिए, अब यहां पर 2 कैरी ओवर हो गया जो है। अब ये h की बात करेंगे, एट h। अब देखिए, अब यहां पर आइए, तो यहां पर ये t का हो गया जो है सिंपली, और नेक्स्ट जाएंगे, क्या हो रहा है यार, अब h पर ये आ गया। अब h पर क्या है, आप सिमिलर फार्मूला लगाइए, ये 21 और 4 तो मैंने बता दिया था, ये आपका जो है फिर मिनुएंट इज लेस देन सब्सटेंड, तो इसका आपका जो है इन दिस केस borrow 2th फ्रॉम th of addend to h of the addend and a to the 4 of the minuend। तो इक्वेशन 3 आपका ये बन गया, क्योंकि ये आपने बारो किया है, और 2th इज इक्वल टू 20h। तो 20 को बोले तो 24 हो जाएगा, और 24 माइनस 21 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब 3 को आप रिप्लेस कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि 2 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 24। तो 4 तो 8 के नीचे लिखा जाएगा, h के नीचे लिखा जाएगा, h आप सम लिखा जाएगा, और इसको कैरी ओवर कर दिया जाएगा। कैसे कैरी ओवर किया जाएगा वो मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये गैप मिसिंग है, इसमें चिंता ना करिए। अब देखिए ht हो गया, अब देखिए यहां पर कैरी ओवर हो गया जो है। अब इसको भी चेक कर लीजिए, तो 15 आएगा। अब टीटीएच की मैं बात करूंगा, ये टी हो गया, अब एच हो गया, अब कैरी ओवर 2 हो गया। फिर टीएच की देख लीजिए, टीएच में वही है, ऐड करिए और सिंपली 15 आ गया। तो 15 क्या आ गया, 5 टीएच के नीचे हो जाएगा, और टीटीएच 1 कैरी ओवर हो जाएगा, और वहां पर भी ऐड करेंगे तो सिंपली 2 आ जाएगा। राइट 2 एट टीटीएच ऑफ द सम। अब देखिए आपका जो है क्यों नहीं जा रहा यार, प्रीवियस अब देखिए जो है, अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चेक करना जरूरी है, तभी आप यहां पर ले सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये चेक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर कैसा आ रहा है। अब इसके बाद आई हैव गिवन सम एग्जाम एडिशन क्वेश्चन, आप दे, ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ये एडिशन का क्वेश्चन है, और ये आपका जो है फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, जो आपको बताना पड़ेगा द वे इन विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। थैंक यू वेरी मच।